Hello everyone, welcome to GUP with Due Vibes, and today we have Rohan Shankar with us. Rohan Shankar is basically an Indian screenwriter who has created some of the very heart touching movies, and it has been a great impact in our lives also, like Luka Chuppi, Mimmi, जो एक बहुत बड़ी हिट हुई है और congrats for that, Rohan. And Thank you, thank also you. now his upcoming is Helmet with Aparshakti Khurana, right? Right, right. Yeah. Okay. So Rohan, you only just tell our audience about yourself. That would be so much great help. So I'm a screenwriter. I started in 2016 में मेरी पहली फिल्म आई थी. It was a Marathi film लाल बाग की रानी. Then 2019 Luka Chuppi came, which was my first Hindi film, and then सूरज पे मंगल भारी in 2020 और 21 में मिमी आई है और एज अ राइटर और अभी हेलमेट आज रिलीज हुई है. So 5 films as a writer I've done, and let's see what happens. Exactly. Everything is, moving very greatly. You just don't have to worry. Just have a faith. Thank you. Okay. Yeah. Okay. So, very first question. Obviously, ये question हमारी audience की तरफ से ही है. Obviously, many youths nowadays, dream of becoming a writer or a screenwriter or author. Okay, but on the other hand, लोगों को लगता है कि this is not a good career to go with, as it doesn't have some constant thing in that will be in your life. It will be just like up and down. स्टेबिलिटी नहीं है. हाँ. Hmm. या Okay, so what is your take on that? मुझे लगता है कि फिलहाल जिस तरीके से इंडियन सिनेमा का और कंटेंट अच्छा हो रहा है, बेटर फिल्में सीरीज आ रही है, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. आई थिंक सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो डेफिनेटली वो स्क्रीन राइटर्स ही है, क्योंकि अभी सब लोग को अलग अलग कहानियां चाहिए. तो अलग अलग कहानियां आती कहाँ से? मैं एज अ राइटर 4 5 7 कहानियां लिख सकता हूँ. ऐसे तो कुछ राइटर्स है. जब नए राइटर्स आते हैं ना, तो नई कहानियां लेके आते हैं. तो जब मुझे लुका छुपी के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला था कि ऐसी कहानी हमने सोची नहीं थी, देखी नहीं थी, तो मैं नया था, वो एक कहानी एक मेरे अंदर थी, या वो एक मैं वैसे लेके आया. तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर स्क्रीन राइटर्स. डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपका 9 to 5 जॉब है, देन यू हैव अ फिक्स सैलरी एंड यू हैव टू वर्क. ऐसा कुछ नहीं. यू हैव योर ओन वर्किंग आवर्स. इट्स अ फन. Unless you're passionate about cinema and unless you're passionate about writing ना, आप ये नहीं कर सकते. It's very difficult to do that. It's better to not do it. But if you're really passionate about cinema, आप सिनेमा देखते हो, you feel that I can write these stories, I can write like this, मुझे मेरे पास एक कहानी है जो कहनी है, then I think uh, थोड़ा सा स्ट्रगल है, जो हर चीज हर फील्ड में होता है, इसमें है. You will get time. First of all, because the process of writing is very difficult. It's not कि it takes like years and months and years कि आप कंटिन्यू लिखते रहो and then you become that, you feel okay because there is a certain format to it, there is a certain transitions होते हैं, चीजें होती है. तो the more you watch cinema, the more you write, you become a better screenwriter, I guess. But yeah, one thing is for sure, I enjoy my work. It's not that कि okay, I'm getting good money and whatever it is, but the moment I stop enjoying writing ना, I can't. It's difficult for me. So now अभी तो I'm enjoying writing. So as long as you enjoy it, or when you enjoy it because it's your passion, this is what you wanted to do. This is my hobby also. This is the thing that pay my bills also. This is the thing I think of when I get up in the morning or before the sleep. These are the thoughts, characters, stories. This is so I live this. So I think yes, it is for the people who want to be screenwriters. I'm telling you, इससे अच्छा टाइम पिछले कई शायद दशकों में नहीं हुआ होगा. इतनी स्क्रीन राइटर्स की और कहानियों की रिक्वायरमेंट है. बट अगर आपको आना है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बी पेशेंट एंड बी पैशनेट. देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क. स्टेबिलिटी तो यार अब मतलब टाइम ऐसा चल रहा है कि
स्टेबिलिटी क्या, अगर पिछले 2 सालों में आप देखें तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है इन द कोविड टाइम्स एवरीथिंग, देयर सो मेनी पीपल हु लॉस्ट द जॉब, जो स्टेबल जॉब्स भी थे। सो आई थिंक आप अभी मत सोचिए ये, अगर आप सही में पैशनेट है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आप म्यूजिक भी करिए, राइटिंग भी करिए, आप स्पोर्ट्स भी खेलिए। स्टेबिलिटी तो ऐसे अपनी कंफर्म सैलरी तो कहीं भी नहीं है, बट इफ यू लाइक दैट, लव दैट जॉब, डूइंग इट, देन जस्ट गो अहेड, वो सोचो मत। यू आई डोंट थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट मोर, that's a fun, मतलब otherwise what happens is something, sometimes we want to do something and we couldn't do because we feel that stability nahi hai, we feel that hoga ki nahi and all this, but after 20-30 years of doing some job, odd job for the living, we feel अरे यार वो करना चाहिए था, अरे मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए था, अरे मुझे एक्टिंग ट्राई करना चाहिए था, तो आई थिंक इट्स बेटर टू do it, but these are the better times, I guess. Exactly. Exactly. Okay, so thank you for that, first of all. Okay, so the very next question is obviously if someone is aspiring to become a screenwriter, and obviously you are also in the same background. So, if you can share your journey as a screenwriter till now, what it has been for you. So I am actually I'm a physics graduate. I graduated in 2007 from Kalyan Birla College, and मुझे ना like होता ना कि I didn't wanted to do any post graduation diplomas or MBAs or anything. I wanted to do some creative. I initially तो मैं I used to live in Kalyan. I used to travel 2-3 hours from local train to Andheri. Mm-hmm. Sorry, to do a what do you say, a radio jockey workshop. I Okay. liked that thing. So after workshop मेरी एक CD बन गई थी, and I was trying to pitch it to radio stations in Mumbai. In 2007, I remember radio station in Mumbai were big FM. हमारे RJ superstars थे, So I tried, पर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला नहीं. Then I said I want to do something creative. So somebody told me, yeah, you go to film institute. Yeah, that's a creative field. So I said, yeah. So I went to so many film institute. एक का फीस इतना ज्यादा था, एक में सीट्स नहीं थी FTI में. Then I went to a small, and I'm telling this not exaggerating, but I went to a small institute in Lokhandwala, and I asked them, ये मुझे फिल्म मेकिंग का कोर्स करना है, because I have no idea what filmmaking is, but it's a creative field. I want to do this. And the girl on the reception said, but what course? And I was not ready for this question because I thought that filmmaking is filmmaking. So she said, uh, what exactly? So I said, director. And she said, okay, the fees is 1.5 lakh. It was huge for me in 2007. क्योंकि मेरे पूरे एजुकेशन का खर्चा नहीं था उतना. I was a small town and Marathi school. So I said, okay, then acting. Well, that's the only two profession I heard of and knew about filmmaking. He said acting is also 1.5 lakh. Then I said, okay, give me your chart. Then she gave me the chart, and I was literally checking out the fee structure: 1.5 lakh, 1.5 lakh, 1.5 lakh, 25,000. What is this? Script writing. So I did that course in the institute, screenwriting, because it was cheaper. So that's how it started. But I did not learn screenwriting, writing. I don't think. But I learned the process and the format of writing. Then I started. My introduction was world cinema. I used to watch a lot of movies, research films, and then I started writing stories on my own. And I wrote so many stories in 2 years of span, and I was pitching it, but nobody, कोई भी entertain नहीं कर रहा था उस वक्त. पता नहीं, शायद 2008, 9, 10 में शायद कोई उतना बोल्ड कॉन्सेप्ट चाहता नहीं था, या फिर अलग कहानियां चाहता नहीं था. आई वाज पिचिंग कंटिन्यूअसली एंड आई वाज नॉट गेटिंग एनी जॉब. So that is why I worked as an assistant director, production manager, production guy, post production supervisor. Did so many odd jobs just to get a writing job that I got in 2014. Lakshman Utekar, the director of Mimi, uh, Yeah. so he was making a Marathi film, Lal Bagh Chirani. It was a very interesting concept. Yeah. So he gave me that first break. Then I wrote Luka Chuppi, the script on my own, the bound script, and then I took it to Lakshman Utekar. I said, "Sir, let's hear this, please."
And the first time he heard it, he said, "अरे, this is a UP film. You are Maharashtrian, I am Maharashtrian. हम दोनों मराठी हैं, यूपी का पिक्चर कैसे बनाएंगे?" तो ऐसे, तो उसके बाद मराठी फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद मैंने वापस सुनाया 1.5 साल बाद। Then he said, "It's good. Let's go to these places to understand, like Mathura, Gwalior." So we went to those places, and I wrote another draft, and that's how it started. Then Dinesh Vijan came on board. He loved Luka Chuppi, the script, and that's how it started. So it was being like it was the, matlab, I was writing from like so many years. I wanted to do a writing job. That's what I said in the initially, ना कि patience चाहिए, struggle है. But मैं शायद उस टाइम पे अगर इस टाइम पे कोई इंटरेस्टिंग कहानी लेके आए ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। उस टाइम पे बहुत था, तो इट्स लाइक मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। But I feel this is how my journey started, and now I just believe in one thing. I just keep on writing. I just like to write, explore. कभी कभी भी एक कहानी लिखता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, फिर दूसरे दिन वो कहानी वापस देखता हूँ, मुझे लगता है बहुत बकवास लिखा है, कभी कभी रात को मैं एक डायलॉग लिखता हूँ, आई गेट वेरी किक्ड अप, आई से व्हाट अ डायलॉग, इट शुड गेट एन ऑस्कर, ग्रेट डायलॉग। मैं अपनी तारीफ करता हूँ खुद की। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई रीड दैट डायलॉग, आई फील इट्स सच अ स्टूपिड डायलॉग। I do. He says, "Why I'm writing such a mediocre line? This is." I just push. I said, what are you doing? Why you are kicking? Why you kicked up about this in last night?" So that's how writing is for me. Like it's depend on phases, and I accept what generally I am my own biggest critic sometimes, and yeah, that's how it's now a part of my life, daily routine. Writing is. That's what I like, and I'm enjoying it so far though. तो देखते हैं, आई होप कि जितना करूँ मैं एंजॉय कर सकूँ तभी वो अच्छी राइटिंग हो पाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। यू नो, जब हम लोग ये मूवीज़ देखते हैं लाइक लुक्का छुपी, ठीक है, मेनली वहीं से थोड़ा यूपी एक्सेंट आ रहा था, बुंदेलखंडी एक्सेंट। एंड माय फैमिली इज़ हाँ, मेजरली फ्रॉम यूपी ओनली, झांसी, ठीक है। सो हमारा जो एक्सेंट है वो वैसा ही है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली आई एम तो born in Delhi only, so I don't have that accent, but my mom does. Okay, and when she watches the movie, she is like, हाँ हम ऐसे ही बोलते हैं, it's generally like this, every little thing has been so put it so correctly in this thing, and it's working so nicely. हम जब थे हम लोग भी ऐसे ही रहते थे, जहाँ ऐसे छोटे घर होते थे, यहाँ होता था वहाँ होता था। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि अगर मतलब हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, we are introducing the culture of India also, we are introducing the new करेक्ट languages करेक्ट also. करेक्ट Yeah. करेक्ट। And obviously I don't know matlab how you do it, but being a Maharashtrian, copying the accent and copying the dialogues of the UP, दे आर मतलब वेरी मच, क्या होता है अपोजिट, मतलब या एक कॉइन ऐसा है तो एक कॉइन ऐसा होगा, ठीक है। तो जब वो हम लोग आप लोग ये डायलॉग्स लिखते हैं, आई जस्ट थिंक दैट हाउ हाउ दे कैन राइट सच डायलॉग्स, बिकॉज ये सिर्फ अगर एक यूपी का इंसान हो ना वो लिख सकता है कि हम ऐसे बोलते हैं हम ऐसे बोलते हैं, या बट बीइंग अ महाराष्ट्रियन यू आर डूइंग इट, इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब एंड यू आर डूइंग सो वेल। Even I am very thankful to you that you are doing it and थैंक you यू। are introducing it. Thank you. Actually, what happens, Paridhi, that's the thing that gives me kick about. I'll tell you. Like when the concept of Luka Chuppi came, so मेरे पास ऑप्शन था। मैं सोचा इसको मैं महाराष्ट्र के स्मॉल टाउन में सेट करूँ, या फिर गुजरात के करूँ, या फिर गोवा के करूँ, या जो भी रीजन मुझे पता थे। आई ट्राइड। मुझे उस रीजन से कुछ मिला नहीं कहानी में। द मोमेंट आई थॉट कि व्हाट इफ आई सेट दिस इन मथुरा एंड वृंदावन, जहाँ पे राधा कृष्ण है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, कल्चरल ये चीज है। जैसे मैंने सोचा, मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने तो मुझे लगा कि अब मैंने अपने आप को अडेप्ट किया है टू टाइम, बट मैंने अडेप्ट किया कि अब ये वहां के लिए बनानी है तो फिर वहां के कैरेक्टर्स होने चाहिए, वहां की लैंग्वेज होनी चाहिए। लाइक आई सेड, वी वेंट टू द प्लेसेस आल्सो, लिव्ड देयर, ग्वालियर वगैरह जो मुझे अनजान थे पहले। सेम थिंग हैपेंड इन मिमी। मैं कभी राजस्थान मतलब घूमने ही गया था, बट जब कहानी आई, थॉट आया, तो अब ये था कि अब ये कहाँ बेस्ड करे। हमने ट्राई किया एमपी वगैरह, लेकिन उसमें कृति का कैरेक्टर डांसर है,
और वो डांसर ऐसे नहीं लगता, कोई छिछोरा चीज नहीं लगना चाहिए था, एक रिस्पेक्टेबल लगना चाहिए। तो राजस्थान में वो होता है, मंडावा में होता है, कल्चरल म्यूजिकल फैमिलीज होती है जहाँ फोक डांस होता है, म्यूजिक होता है। अब जब राजस्थान की बात आई तो मुझे पहले नहीं पता था राजस्थान। अब मंडावा गए तो वहां पे शिखावटी लैंग्वेज है, शिखावटी का डायलेक्ट होता है राजस्थान में, मंडावा रीजन में पूरा झुंझुनू मंडावा। तो जो हरियाणा से थोड़ा बॉर्डर पे है, वो थोड़ा सा हरियाणवी भी लगता है आपको कभी कभी। तो जब मैं गया तो दैट मैंने वहां पे एक बंदा लिया जो जयपुर का, जेडी था उसका नाम, जो डायलेक्ट जानता था। मैंने उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट उसका डायलेक्ट समझ के फिर डायलॉग्स लिखे, और फिर वो एक्टर्स ने वैसे बोले। जो मैंने लुका छुपी में किया कि मैंने ब्रज भाषा का, ब्रज हिंदी थी, यूपी की हिंदी थी, लेकिन ब्रज भाषा का डायलेक्ट था बीच बीच में, जो वहां का एक बंदा पंकज था, मैंने उसको लिया और उसके साथ वो ब्रज भाषा। तो आई लाइक एक्सप्लोरिंग द स्टोरीज, दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। अगर मैं, मुझे सिर्फ मुंबई पता है और मैं सिर्फ मुंबई के बारे में जिंदगी भर लिखता रहूं, तो इससे बोरिंग चीज कुछ नहीं है। कोई अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं पंजाब की एक कहानी लिखी है, तो मैं उसके लिए पंजाब गया। मैंने लिटरली पूरे पंजाब रोड ट्रिप किया। मैं एक्चुअली ऐसे नहीं कि हमने देखा है पंजाब समझा है, मैं घूमने भी गया था, बट मैं कहानी के हिसाब से नहीं गया था, मैं ऐसे ही घूमने गया था। तो आई आई मुझे वो मजा वो है मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ, अब मैंने एक कहानी आई है दिमाग में, आई वाज थिंकिंग कि आई नो नाउ यूपी, आई नो पंजाब, आई नो राजस्थान, आई नो महाराष्ट्र, आई नो दीज स्टेट्स लाइक मैं look, बट आई वांट टू एक्सप्लोर द स्टोरी इन सम अदर बैकग्राउंड और प्रेमाइस और कल्चर। उससे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। वो कल्चर, जैसे व्हाट इफ आई राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट केरला, अ हिंदी फिल्म ऑन केरला और अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, जो हिंदी फिल्मों में एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, बट वो कितना अच्छा कल्चर लोगों को दिखेगा, कहानी नया कुछ चीज होगा, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ, आई थिंक इस समय पे हम शायद कर सकते हैं जो टाइम चल रहा है, जहाँ पे ऑडियंस इतना एक्सेप्ट कर रहा है अलग अलग चीजों को। एंड आई थिंक दिस आर द, इस टाइम पे शायद मैं वो कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट गिव्स मी किक। अदरवाइज तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, एक ही कहानी एक ही, जैसे पहले होता था कुछ कि सिर्फ बॉम्बे की कहानियां चल रही है, मुंबई में हर कहानी चल रही है, हर कहानी चल रही है, तो फिर मजा नहीं है And you know मेरे। what? The thing you are writing right now, it is exploring everything. Also, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हैं, but when they see राइट, these kind of stuff, they kind of open their mind to some extent. Even if they open their mind to 10 extent 10%, it's fine, because अगर वो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड थोड़ा ओपन हो रहा है, लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स, आई थिंक लुक्का छुपी इसी पर ही थी। लिव इन relationships are not acceptable, generally not acceptable. करेक्ट, Yeah. And maybe the surrogacy thing, not acceptable, but still we are trying to have a change in our society also, so that they can also accept everything. So that's what we need right now, that's what youth need right now, ki you just have to accept it. Some things are changing, and that's why you have to accept it. So जो राइट। भी वो आ रहा है ना आइडिया आपके दिमाग में, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, बट इट्स कमिंग वेरी नाइस. थैंक यू। एक्चुअली इट कमिंग्स फ्रॉम हमारी अपब्रिंगिंग, आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन, एंड आई सी व्हाटएवर अपब्रिंगिंग जो हुआ, जो सराउंडिंग हुआ, तो आई थिंक एक स्मॉलर टाउन में आप ज्यादा अवेयर होते हो, आई फील, कुछ चीजों से, जो की चीजें आपके सामने घट रही होती है, कैरेक्टर्स कल्चर्स आपके सामने होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे खुश होना, यू नो या फिर स्मॉल टाउन, या फिर आप एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड भी कह लो, कि बड़े शहर में भी आकर अगर एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड है या वैसी सराउंडिंग है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आप खुद देखते हो और समझते हो, कैरेक्टर्स हो, झगड़े हो या प्यार हो या कुछ भी हो या दोस्ती हो, ये मायने ही अलग है इनके, ट्रस्ट मी। तो ये आप अगर देखते हो, आगे बड़े पले बड़े हो, शायद, तो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज है कि आपने वो रियलिटी क्लोजली देखी है ना। तो व्हेन यू बिकम अ राइटर और अ फिल्म मेकर और एन एक्टर ऑल्सो, देन आपके लिए थोड़ा सा शायद कन्वीनियंट या आसान हो जाता है, अदर देन मोर देन द अदर पीपल, क्योंकि आप, यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर डूइंग इज, तो जनरली व्हाट आई डू इज आई राइट कैरेक्टर्स जो मैं मिला हूँ। मतलब मैं ऐसे कोई बनाता नहीं हूँ कैरेक्टर्स, ओके. कि मैं अगर समझो आपसे अभी बात कर रहा हूँ अगर हम मिलते हैं, मैंने आपसे बात की, चाय पी, और मुझे लगा कि यार
तुम्हारा एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेट लगा, तो 2 साल बाद शायद मैं एक फिल्म लिखूंगा जिसमें मैं एक कैरेक्टर लिखूंगा, दैट्स व्हाट आई डू। लाइक मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, जो भी चीज है, जो भी दोस्त है, मैं तो कुछ दोस्तों को बताया नहीं, मैं उनका कैरेक्टर लिख चुका हूँ, सो बट दैट्स व्हाट, बिकॉज रियल, इसीलिए वो शायद रियल लगेंगे क्योंकि वो रियलिटी से लिए गए जुड़ा हैं, हुआ है। इंस्पायर्ड हुए हैं। हाँ, इसीलिए रिलेट भी करेंगे। That's एग्जैक्टली। और आजकल लोगों को वही चाहिए, दे आर नॉट लाइकिंग द, मतलब वो जो नहीं होता, वो बड़े शहर में रहते हो, बड़े घर में रहते हो, आजकल लोगों को वो नहीं चाहिए। आजकल लोगों को चाहिए कि हम जिससे रिलेट कर पाए, जो हमारी आजकल रोजाना जिंदगी चल रही है, कि हम हाँ, वो लोग यहाँ जा कनेक्ट रहे हैं, हम कनेक्ट वहाँ जा जरूरी रहे है हैं, जो। क्या हो रहा है। तो आजकल लोगों को ही वो चाहिए है। एंड ऑब्वियसली इट्स करेक्ट ऑल्सो, ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक टू सी दीज थिंग्स ओनली फ्रॉम दैट, मतलब दे कुड लिंक देयर लाइफ। हाँ, मतलब वो मतलब दैट्स कनेक्ट व्हाट आई एक्चुअली, टोल्ड यू, कि मेरी मम्मी द हमेशा लिंक सिनेमा करती है दैट इज, अपनी लाइफ से। which is true because every person is doing it. The cinema that is working today, commercially big, that is the cinema. It was a parallel cinema in 80s. एग्जैक्टली। तो अभी अगर जो आप विकी डोनर देखते हो, दमला की आयशा देखते हो, मिमी, लुका छुपी, या फिर बधाई हो, या फिर बरेली की बर्फी, या जो भी ऐसी पिंक है, जो भी ऐसी एक रियल फिल्में देखते हो ना, तो ये वाली फिल्म जो आज कमर्शियल है, ये 80s में पैरेलल सिनेमा था, जिसमें कथा, चश्मे बद्दूर, या फिर शाम बेनेगल की फिल्में, या फिर जाने भी दो यारो, वैसे। तो ये ऐसे नहीं कि हमने बनाया नहीं, हमने सिनेमा बनाया, लेकिन उसको उतना एक्सेप्टेंस नहीं था शायद वाइडर। अब सिनेमा ज्यादा रीच कर गया है, या फिर प्लेटफॉर्म की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड पीपल आर रियली वांट टू कनेक्ट विद इट। दे डोंट वांट, अनलेस यू आर मेकिंग अ सुपर हीरो फिल्म, unless you're making a film जहाँ पे हीरो, sometimes you want to see that also, कि you go in a theater और एक हीरो 50 लोगों को मारे and you feel great, you see great VFX and you see great action and you see okay nice, मेरे पैसे वसूल, you want that also, that is also great cinema, but generally you want to get connect to it. Generally now what you're watching, probably people like you said, your mother, like I said, my mother, or that, उनको लगता है कि ये लुका छुपी में एक सास का कैरेक्टर है, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू वो मेरे से ऐसे करती है, और छोटी बहू से वो बायस्ड है, तो इट वाज, तो पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू इट, बट दैट इज व्हाट हैपेंस, इट्स नथिंग एलियन टू इट, इट्स हैपन इन आवर फैमिलीज, इट्स जस्ट probably the way to put it in the script, but that's what I like doing it. ज्यादा ज्यादा नहीं सोचता मैं इतना कि क्या होना चाहिए, मुझे पता, अरे यार मेरे घर में एक चीज हुई थी मेरी, just kidding, but I'm just trying to do things जो कनेक्ट करे। ओके। सो ऑब्वियसली ऑडियंस का एक और सवाल था कि इफ दे वांट टू बी अ स्क्रीन राइटर, दे आर प्रिपेयर्ड दैट एक्स वाई जेड, अ स्क्रीन राइटर, ऑथर, वट एवर, ठीक है, अ राइटर बेसिकली। सो वॉट इज द मेन थिंग दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ, मतलब अगर वो लोग अगर स्क्रीन राइटर भी बनना चाह रहे, ऑब्वियसली ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दे हैव टू क्रिएट सम नेटवर्किंग ऑल्सो विद पीपल, दे हैव टू हैव सम आइडियाज इन देयर माइंड कि हाँ हमें ऐसे अप्रोच करना है, वी हैव टू गो लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन वी हैव टू गो, ओनली देन इट कैन बी अ सक्सेस। सो व्हाट्स दैट थिंग? एक्चुअली मुझे लगता है पहले तो लिखो, मतलब स्टार्ट राइटिंग इट फर्स्ट। इफ यू वांट टू बी अ स्क्रिप्ट राइटर, आई डोंट थिंक टुडे यू नीड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट, फिल्म इंस्टीट्यूट, you go to YouTube, okay, and you first you start watching films. First, just go and watch films. Google कर लो 20 best screenplays in movies. आपको 20 पिक्चर की लिस्ट मिलेगी. Watch those movies first. Watch movies, discuss those movies, discuss the scenes and dialogue. Go to you. मैं आपको बहुत फ्री में बता रहा हूँ, फ्री वाली चीजें सारी जो काफी, मतलब मैं भी करता था अगर मैं आज होता था। YouTube पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने स्क्रीन राइटिंग के बारे में बोला है, राइटिंग के बारे में बोला है। हियर इट जस्ट, और आपके दिमाग में फिर ये सब ग्रास्प कर लो, ये इसमें कोई ये नहीं है कि पहले ये करो वो करो, अच्छे से कर लो। देन वॉट एवर थॉट यू हैव इन माइंड, एक लव स्टोरी है, एक सैड स्टोरी है, एक जो भी है, स्टार्ट राइटिंग इट। जितना आप लिखोगे उतने अच्छे राइटर बनोगे। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट राइटिंग। मैं इतना लिखता हूँ और
फिर मुझे उसके मैं लिखने से राइटर बनाऊं, मैं राइटिंग करने से राइटर बनाऊं। राइटिंग आपको खुद राइटिंग ही सिखाती है, दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। जैसे रियाज का होता है ना संगीत का, आप जितना अच्छा गाओगे उतने अच्छे गायक बनोगे, दैट्स व्हाट रियाज इज, राइट? राइटिंग का वैसे ही है। तो भले ही बुक हो या सिनेमा हो, बुक पढ़ चाहते हो तो बुक पढ़ो, बट ये पहले तो ये करो। एंड द मोमेंट यू फील यू हैव अ स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग टू टेल, देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल। वो पार्ट तो रहता ही है, वो पार्ट आपको करना ही है। देयर आर सो मेनी वेज टू इट। सॉरी, आप यहाँ पे आओ, इफ यू नॉट फ्रॉम मुंबई, कम टू मुंबई, start going to production houses, meet, start sending your emails, start register your story in a scriptwriter association. वो तो बहुत सस्ता है और सबके लिए है, रजिस्टर कर लो, स्टार्ट पिचिंग इट। 1 2 5 10 15, आपको 20 लोग मिलेंगे, उसमें से एक बंदा मिलेगा जो शायद आपको एंटरटेन करेगा और आपको बोलेगा हाँ यार कहानी तो अच्छी है, लेट्स सी, देखते हैं। That's what happened with me. That's what happens with everyone who comes from outside with, stories and everything. So that is the process and be ready for it. Don't, अगर आपका उससे बेटर अगर ये है कि आपको कोई पहचान वाला है, रिश्तेदार फिल्मों में है, उसने किसी को मिला दिया, शॉर्टकट बन गया, तो नथिंग लाइक इट। बट मैं बोल रहा हूँ कि बी रेडी फॉर दिस, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, डोंट बी स्केर्ड ऑफ इट, should be happy and excited about it, just enjoy it, because those things will make you a better, आपको थोड़ा बेटर इंसान भी बनाएगी और आपको थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी बनाएगी। तो आई एंजॉयड दोस स्ट्रगल बिकॉज आई यूज्ड टू मीट सो मेनी पीपल, अजीब अजीब लोग। एंड देयर वर सम टाइम्स व्हेन आई वाज नरेटिंग अ स्क्रिप्ट, आई वेंट टू अ ऑफिस, और मुझे वो ऑफिस देख के मुझे पता चलेगा ये बंदा पिक्चर बना ही नहीं सकता, इसका लाइट बिजली का बिल नहीं दिया इसने, इसके ऑफिस में पेंट नहीं है यार, ये कैसे प्रोड्यूस करेगा। स्टिल आई वेंट अहेड एंड नरेटेड हिम द स्क्रिप्ट फॉर 2 hours, बिकॉज आई सेड अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं 2 घंटे इसको सुना के इसका फीडबैक लेता हूँ कि इसको कैसी लग रही है, और इट्स ओके बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग द नरेशन। तो आई गेस एट सम पॉइंट यू टू ये रख के चलो एंड बी प्रिपेयर्ड। इट्स अ फन प्रोसेस डेफिनेटली। तो कुछ समय आएगा जिसमें काम नहीं होगा, ये होगा, बट वो हर जगह पे है, एनी फील्ड, whether it is entertainment field or sports or any field जहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत ज्यादा नाम है, फेम है, वो फील्ड में सब में इतना स्ट्रगल तो है ही। तो डोंट थिंक अबाउट इट, और कॉन्टैक्ट बनते रहते हैं, बट इफ यू शुड हैव सम मटेरियल विथ यू। अगर आपको राइटर बनना है, अगर आपको एक्टर बनना है, तो आपको जाके हर जगह ऑडिशन देना पड़ेगा, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर से, ऑफिसर से, वहां एक ऑडिशन देना पड़ेगा, जो प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको राइटर बनना है तो यू सम आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, जब आप आते हो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए। वो तो होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे आके ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मुझे राइटर बनना है, तुमने क्या किया, कुछ नहीं, तो अभी क्या करूं मैं? तो नहीं, तो मुझे कुछ राइटिंग के लिए, तो राइटिंग के लिए तुम लेके आओ, हम थोड़ी देंगे तुमको, तुम राइटर हो ना, तुम लेके आओगे तो हम पिक्चर बनाएंगे, बिकॉज वी ऑल आर लुकिंग फॉर इट। Exactly. सो या, Okay. यस, So, again, thank you for sharing that information with us. And the information that you are sharing right now, it will be a huge help for everybody. In Delhi University also there are many people who aspire to become the screenwriters. मतलब हमारे में एक वो होता है that we have some societies. So एक नुक्कड़ नाटक सोसाइटी होती है, एक फिल्म सोसाइटी होती है. So there are करेक्ट, people who are just writing the stories for it, and it comes out so nicely when we see it, like it creates a huge impact within us only. But या आगे मस्ट बी, कैसे करना है, क्या करना है, they have no idea with it. So obviously it will be help for those students as well. Obviously I'm also a student, so that's राइट। why I can relate with them also कि हाँ उनका क्या चल रहा होगा सीन, और यहाँ पर हेल्प क्या हो सकती यार है. वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इवन नाउ डेज ना, लाइक यू हैव अ मोबाइल फोन, यू यू शूट अ शॉर्ट फिल्म, जस्ट मेक इट फॉर योरसेल्फ, लोएस्ट इतना कम पैसे में यू कैन मेक इट, 4 दोस्तों को लेके, और वो बना लो, यूट्यूब पे डालना है डालो, नहीं डालना नहीं डालो, बट पुट योर थॉट इन द स्टोरी इन दैट शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट में कैसे होगा, and you can send that film also. And there are so many times it happened in especially Hollywood that लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसके ऊपर फीचर फिल्म में बनी है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म इतनी अच्छी थी, कहानी इतनी अच्छी थी। देयर आर सो मेनी वेज, इन इन सारे
आप किसी भी चूज करो, विच एवर पाथ यू चूज, देयर इज टाइम लगेगा, बट दैट्स व्हाट माय मेजर पॉइंट इज, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। Okay, so while creating Helmet, obviously it has been released I think today only. So while या creating Helmet, what was the thought process going on in your mind? So, Helmet, the thought, the concept came from the director Satram and his friends, three, four friends. They came up with this concept, और मुझे उन्होंने जब सुनाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा बहुत अच्छा है। इसमें ह्यूमर Mhm. तो, मतलब कॉन्डम है, ह्यूमर है, तो I आएगा। मतलब हम देश में रहते हैं, हम कॉन्डम बोलते हैं, लोग हंसते हैं, तो exactly. कॉन्डम बोल बोल कॉन्डम, ये वर्ड ही कॉन्डम जोक है। सामने होता है तो तो लोग मैंने, मना कर देते नहीं हमारा नहीं है। हाँ, तो मैं बोला ये तो चीजें, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि इतना रिलेटेबल है। हर एक मर्द जब भी मेडिकल शॉप गया है इस देश में, कभी ना कभी उसने ये फेस किया है कि यार वो लेके नहीं आ पाया, या मांगने में शर्म आई, या मांग लिया और लोगों ने रिएक्ट किया। एग्जैक्टली। मैंने तो उल्टा देखा, मैंने तो देखा कॉलेज में कि मांग लिया, कॉन्डम ले लिया लड़के ने कैसे भी करके, अब वो छुपाएगा कहाँ? उसको छुपाना पड़ता है कि अब उसके बैग में अगर मिल गया तो सोचो घर पे क्या होगा। अच्छा, जेब में दोस्तों ने देख लिया तो क्या तो होगा? वो तो जान ही ले लेंगे उसकी। तो हाँ। वो अलग अलग प्रॉब्लम्स है कॉन्डम्स के। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरा यही था कि मैं जब डायरेक्टर को बोला सतराम को, मैं लिखूंगा, बट मुझे आई वांट टू गो ऑल आउट। जहाँ पे जर्नी जा रही है ना, मुझे मुझे रियल एक्सप्लोर करना था कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि एक ऊपर ऊपर एक कॉन्डम वाली कॉमेडी नहीं बनानी थी, लिखनी नहीं थी मुझे वैसे, कि चलो ये तो वो लड़का के प्रॉब्लम हुआ, मांग नहीं मांग पाया, बट इसके अलावा क्या क्या है। तो कॉन्डम यूज नहीं करते हो तो प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन से कितनी तकलीफ है, फिर एसटीडीज है, डिजीजेज है, बहुत सारे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है कॉन्डम ना इस्तेमाल करने से या नाइस। ना मांगने से। तो आई वांटेड टू गो देयर वेयर, जैसे अगर आप हम खुद देख लो ना, आप कोविड टाइम्स में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, कितने लोग सफर किए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ओवर पॉपुलेशन। वी आर ओवर पॉपुलेटेड। हम कितने अस्पताल बनाएंगे यार? हमको, आई नो कि एज अ गवर्नमेंट हमको कंटिन्यूस बनाते रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट वी आर ओवर पॉपुलेटेड, वी हैव टू स्टॉप। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री। तो व्हेन आई वाज राइटिंग ना, ये चीजें चल रही थी कि भाई, इस देश की सारी प्रॉब्लम्स का कोर प्रॉब्लम है ना, पॉपुलेशन ओवर है, पॉपुलेशन, गरीबी, राइट। पॉपुलेशन है। जो भी आप देख लो, कोविड सबसे ज्यादा थर्ड सेकंड में इफेक्ट क्यों किया? डेंसिटी पॉपुलेशन इतनी है यार हमारे यहाँ पे, कैसे कैसे बचोगे कैसे? तो व्हेन आई वाज राइटिंग, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं सोचा था ये एक एंटरटेनिंग वे में तो दिखाना है, बट आई वांट दिस स्टोरी टू रीच टू प्लेसेस जहाँ पे यू नो डार्क प्लेसेस ऑफ द सोसाइटी, टू बुढ़े, यंग, और दे आर women in the film there is a part when women are selling condoms also, because they want it. Now they want it more. They said they want the women, men to wear it, because we are suffering because if you are not wearing. So I wanted to go all these places, जो मैंने किया, बट सिर्फ दिमाग में इतना था कि इसको जितना हम फनी, लाइट फनी रखेंगे और चीजें कहते जाएंगे ना, उतनी ये उतना एक्सेप्टेबल ज्यादा होगी। जैसे हम प्रीची बने, सीरियसली हमने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, लेक्चर देना कि ये देखो ये है कॉन्डम, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लोग बंद कर देंगे टीवी, लोग पिक्चर नहीं देखेंगे, बिकॉज नोबडी लाइक्स दैट। मतलब हम कॉलेज में, मुझे लेक्चर्स पसंद नहीं थे तो मैं क्यों लोगों को दूं, बट इस फनी लाइट वे में कहनी थी कहानी बस। एग्जैक्टली मतलब अभी तो हम लोग खुद यूथ हैं, सो ऑब्वियसली वी हैव अ टॉक, मतलब वी हैव अ जनरल टॉक रिगार्डिंग द condoms also. So nowadays also youths are like, what's the need of wearing the condom and all, they can take the pills and all. मैम बोला अरे, मैम बोला why या will या they या take या the pills? मैम बोला it has so many side effects and you are telling them to करेक्ट take the करेक्ट। pills and all. मैम बोला what's the use of it? So obviously every people, matlab each and every people need to understand that कि condom is necessary. Either a man or a woman, they need to या understand that it's a necessary. It's not like you have a choice or something. और ये, आई एम सेइंग, आई रियली बिलीव कि
in our age now when we're not married and वहाँ पे youngsters they should have condoms all that if they have really in a relationship girlfriend or whatever it is लड़की लड़के लड़के majorly they have condom with them they should have condoms with them in wallet I really feel that because you never know जब आप किसी से intimate हो रहे होंगे the moment आया and you don't have it and you do it and then it's a तो लेकिन ये जो अवेयरनेस है ये जो सेक्स एजुकेशन है ना ये जो दिमाग में हमको डालना है धीरे धीरे लोगों के या फिर डालना चाहिए या फिर मैं मतलब हमारे ऐसे लोग कोशिश करते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सिनेमा इन सबसे इन्फ्लुएंशियल मीडियम है उसमें क्या बातें कर सकूँ क्या चीजें कर सकूँ बट ये सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है कितना जरूरी है ये चीज बहुत छोटी चीज है लगती है लेकिन जब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट ना शॉकिंग फैक्ट we came across this 5% of Indian men use condoms only 5% लाइक मतलब 110 करोड़ लोग यूज करते नहीं है मतलब 110 करोड़ फैमिलीज में या फिर वो अगर हम ये बात करें कि 50 करोड़ मैन है तो ओनली 2.5 करोड़ लोग मर्द इस्तेमाल करते हैं 50 करोड़ में से तो इट्स लाइक दैट शॉकिंग फिगर तो पता चलता है कि यार इतना हो कैसे रहा है बिकॉज तो धीरे धीरे आई थिंक दैट्स व्हाट हेलमेट जो लिख रहे थे ना मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि ये कॉमेडी तो बन जाएगी कॉमेडी तो बहुत कॉन्डम के ऊपर कॉमेडी कोई भी बना सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट आप हाँ मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं हम 2-3 जो क्रैक कर लेंगे कॉन्डम पे यार इट्स ओके तो हंस लेंगे उसके अलावा क्या क्या हम मतलब वो चीजें कह पाएंगे जो जरूरी है तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड दैट्स व्हाट माय थॉट प्रोसेस My sister is also doctor. My friends are मतलब in this field only, medical field. So she used to tell me when she was in her internship days, she used to tell me that every day there are 5 to 10 cases of abortion. Sometimes या the या girl was even below 18 or 18 age. So I was like, अरे ये क्या हो रहा है? And yes, and when I think एक हफ्ता पहले only I was talking with my friend and he was like, I did an abortion and I was like, अरे यार. And the girl was I think of 14 to 15 years old only, and she was बाप रे three months pregnant, and I was like, what the hell is going on? मतलब, and it was all mutual, and that's what I was in shock. हमला अरे तो mutual था तो you should have used some protection or anything. करेक्ट 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 बट So वो आई नो आई मीन कि ये ना ये हमको ना बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एज ए सोसाइटी जैसे वी आर ग्रोइंग व्हाट एवर मीडियम्स वी हैव टू पुट इट कंटिन्यूअसली इट्स नॉट अबाउट वन फिल्म ये फिल्म आगे इट्स नॉट वी कंटिन्यूअसली लाइक हमारे बच्चे हैं हमको उनको एक टाइम पे वी नीड टू टॉक विद देम व्हेन द एज इज राइट आई एम नॉट सेइंग 10 साल की उम्र बात कर आई एम सेइंग द एज इज राइट talk to them about sanitary pads when the girls are 11 12 13 जब जैसे होता है talk to girls and boys about condoms when like 16 17 18 जब भी तो ये मुझे लगता है like, ये बहुत जरूरी है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन ये जो सब्जेक्ट है वो उतना अच्छे से आ नहीं रहा बताते या ही पढ़ाया नहीं जा रहा या लोग ग्रास्प नहीं बताते कर ही रहे पता नहीं नहीं है। क्या है मैं कहते रही हूँ बताते ही आई नहीं है। मीन वो चैप्टर आता है वो खुद ऐसे कॉन्शियस हो जाते हैं, दे आर लाइक वो जब वो बस बुक रीड करते हैं, दैट्स ऑल द पढ़ाई is रिगार्डिंग या सेक्स एजुकेशन। हाँ मतलब और आई रिमेम्बर जब 12 आई वाज इन 12 में साइंस किया था तो जब they draw like sex organs या we just laugh I used to just laugh because the biology professor used to draw sex organs and we just used to laugh and laugh and laugh and cracking jokes for like 2 months on that professor and the diagram he drew and everything so I think I don't know there should be a way of teaching sex education also एग्जैक्टली। there should be some way of teaching also कि उस उम्र तक तो हमको पता चल गया था क्या चीजें होती है बट शायद उससे पहले होना चाहिए था मुझे लगता है तो वो ओवरऑल यार जस्ट वी आर बिकमिंग नंबर हम थोड़े ही शायद सालों में हम चाइना को क्रॉस कर देंगे विल बी नंबर 1 बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रस्ट मी रिसर्च ऑन दिस एंड
ऐसा तो नहीं है कि वी डोंट डू सेक्स ऑफन, वी आर डूइंग द मोस्ट प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। आई मीन ऐसे तो नहीं हो रहा, तो हमारे सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दुनिया के नंबर वन पॉपुलेशन होने वाले, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। टैबूश क्या बात कर रहा है यार, कहीं से बात होती है। छी एक छी छी यू छी नो छी। एक आई जस्ट इमेजिन आवर फैमिली, दोस्तों में हम कर पाते हैं, जैसे तुम तुम्हारे हाँ, दोस्तों में कर पाओगी, मैं मेरे दोस्तों में, पर जैसे फैमिली की बात आती है, कैसे होगा, क्या बिगड़ होगा, गए हो तुम। मतलब कौन, अरे बाप। हाँ, मैंने एक डायलॉग डाला था, एक लड़की फिल्म में हेलमेट में है, एक लड़की शुरू में ही बोलती है कि मेरे मेरे पर्स में मेरी माँ ने कॉन्डोम देख के तो ऐसा बवाल कर दिया, ऐसे कोई बम रखा हो। अरे यार आई मीन यू नो, बट दैट्स व्हाट इट इज, द ट्रूथ इज। सो यस, थोड़ा अवेयरनेस धीरे धीरे इसका होगा। और मैं आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना बोल्ड है और जितना मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता, मैं आई एम ट्राई करता हूँ लेके आ जाऊँ, बिकॉज उस लैंग्वेज में, उस में, क्योंकि उसमें मजा है। मुझे कुछ ना कुछ सब्सटेंस शायद मैं देने की कोशिश करता हूँ हर बार, सटायर के रूप में या फिर किसी भी चीज में, क्योंकि मुझे लगता है वो जरूरी है। अब आपको हो सकता है पिक्चर अच्छी लगे या ना लगे, इट्स ओके, सब्जेक्टिव चीज है, कभी अच्छी लग सकती है, कभी नहीं लग सकती, बट मैं सेटिस्फाई हूँ एज अ राइटर, आई एम सेटिस्फाइड, ओके यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया, मेरा काम हो गया, फिर से ऐसे। एग्जैक्टली, यू नो, मतलब स्कूल्स में आजकल एजुकेशन नहीं है इन सब की। when we talk about the sex education or you know general menstrual hygiene also, तो हमें क्या करा करेक्ट। जाता था। आई एम तो रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल, सो आई रिमेम्बर एवरीथिंग। तो गर्ल्स का ना एक अलग सेक्शन जाता था कि यू नो गर्ल्स चलो चलो हॉल में चलो, यू नो वी हैव टू टॉक समथिंग। एंड वो हमें अलग से बताया जाता था, एंड यू नो बताया जाता था डोंट टेल टू बॉयज। एंड आई वाज लाइक, मैं हम भी हाँ, तो बहुत ही छोटे थे, हमें ऐसे होता ठीक है नहीं बताना है। बट नाउ द टाइम इज चेंजिंग, even the boy is communicating with the girl regarding this, and the girl is also free to communicate with the boys because they understand the situation. Same is with the sex education, अगर अभी नहीं समझ रहे हैं, आजकल फिफ्थ क्लास के बच्चों को ये सब पता होता है जो हमें ट्वेल्थ में पता चला होगा। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, the time ट्रू। is changing, so I think they will get comfortable in these topic, and then the whole scenario will change. Yeah, because I remember when, like, I was in, I think, फर्स्ट ईयर साइंस में था, आई रिमेम्बर। तो मेरी दो तीन हमारा ग्रुप बना था, लड़कियां दोस्त थी कुछ अच्छी, एंड दे वर वेरी, दे वर वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स, एंड वी यूज्ड टू सिट, एंड that's the first time a girl was discussing menstrual, about periods and menstruation with me, and I was so shocked because of my culture और whatever background I had, कि Yeah. ये तो मैंने कभी कभी घर पे, मेरे घर पे एक माँ है, दो बहनें, मैंने कभी किसी को खरीदते भी नहीं देखा है ना, किसी ने मुझे खरीदने के वैसे बोला भी नहीं कि बेटा जाओ जाके खरीद के लेके आओ, बट व्हेन द गर्ल्स वाज डिस्कसिंग एंड आई वाज लिसनिंग, आई वाज सेड, हाँ यार ये तो होता है, मुझे पता था, बट आई डोंट नो इतना होता है, आई डोंट नो इतना ज्यादा होता है, आई नो इतनी तकलीफ होती है और इतना ब्लीडिंग होता है, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट फेज ऑफ अ गर्ल एट दोस 4 5 days, कि मुझे वो समझना पड़ेगा, उसके मूड स्विंग समझने पड़ेंगे, तो फोर टू व्हाई फाइव शी इज डेज से नॉट पहले ही एक्टिंग आने लाइक लग दिस, जाते व्हाई हैं शी मूड इज, स्विंग्स तो। हाँ वहां करे एक दिन पहले, एक दो दिन पहले, आई एम सेइंग कि ये मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई वाज लाइक, हाँ ओके, बट then when it happened, the stronger women or in girls, I used to meet, and I love meeting stronger women, because they should discuss it openly na, that was very inspiring for me। मुझे लगा कि यार ये बहुत कमाल चीज है, and then we used to discuss condoms also, then we used to discuss sex also without having any sexual feeling, so that happened, I think ये शायद उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2003 4 की, बट अभी जनरेशन में आई गेस, आई होप कि अभी ये चीजें बहुत अच्छे से बच्चों में, दोस्तों में डिस्कस होगी, बिकॉज ये बेनिफिशियल ही नहीं, है इसमें। होती है, सब सब डिस्कस होता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो पहले का माहौल था वो काफ़ी अलग था, बट जो अब का है, ऑब्वियसली आई कैन डिस्कस दीज थिंग्स विथ माई पेरेंट्स बिकॉज वो इतने ज़्यादा अभी दैट्स ओपन माइंडेड नहीं होंगे। ठीक है, आई कैन डिस्कस, दो आई कैन डिस्कस माई मतलब विथ माई पेरेंट्स एवरीथिंग, बट जनरली आई एम टॉकिंग कि वो लोग शायद डिस्कस अपने पेरेंट्स के साथ ना कर पाए, बट वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस कर पाएंगे।
So correct. now the things are changing. Obviously, in future also these things will change, and people will understand this. कि, it's normal. जैसे अभी भी हाँ if एंड I say, yeah, sorry. नहीं सॉरी, सो आई वाज नहीं आई वाज सेइंग कि एंड दैट इज हाउ the medium of cinema or television or OTT or YouTube or whatever it is, internet is beneficial. That is how it takes up. That is how it comes. And now whatever there is opportunity I am getting, I just try to say things. I just try to make film. I enjoy film funny, but I want to put something out there. I just want to put something out there. You probably see and you feel, अरे यार बहुत पता रहा है. It's okay. I just want to do my job. This is what I feel. वैसे. Yeah. So yeah, that's what. मतलब आजकल अगर देखा जाए तो if I say, बहुत सारे मतलब वो होंगे कंजर्वेटिव लोग जो आजकल वर्जिनिटी को बहुत बड़ा इशू मानते हैं. मतलब इवन हाँ करेक्ट करेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट मतलब हमारे रिलेटिव्स आल्सो, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक द वर्जिनिटी. इफ अ गर्ल इज नॉट वर्जिन, they will just give her some names, and that is very shameful because obviously they are correct, Yeah मतलब yeah yeah. setting some character for her or whatever. So That is these things trust have to be me. Well, that is changed. yeah Even yeah. I say But to my these parents, don't do this, it's not right. You have no right to comment on this. So they are like, अरे तुम इतना वो हो गई हो. So obviously the things are changing, but it's very so slow. आई थिंक वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब जब हमको जिसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फेसबुक का पेज भी मिल रहा है ना, जस्ट say things. You don't Yeah. like it, you just say things. That's the responsibility for each and every person. If you really feel change should happen, start with you. And Exactly. not necessarily you should have a film to make. Instagram पे Yeah. डाल दो यार. Just keep putting it up for the time if you don't get disturbed for some things and everything. Share your thoughts. It's okay. People will judge Yeah. you anyway. So it's okay. They will judge every time. Even if I'm talking, like this to you, there will be people who will be judging me for that. There will be people. Mm-hmm. There are people who will judge. I'm the like, जाओ यार माफ करो मुझे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ. So it's a process. Yeah, yeah. मेन फंडा है उनका. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा फनी सा है. ठीक है. व्हाट्स द मोस्ट वियर्डेस्ट मोमेंट वाइल शूटिंग फॉर द हेलमेट और वाइल क्रिएटिंग द स्क्रीन प्ले फॉर द हेलमेट? व्हाट वाज द वियर्ड थिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड? Weird thing तो weird thing तो हम लोग weird thing तो बहुत ऐसे हुआ क्या कि we were shooting in बनारस. या. तो we started shooting बनारस में हेलमेट शूट हुई है. तो होता क्या था कि जब हमारे सीन्स के लिए हमको कॉन्डम्स के पैकेट्स लगते थे, तो हम एक कामासूत्र कंपनी से सोनी पिक्चर्स का टाई अप था. तो कॉन्डम दैट वी यूजिंग फ्रॉम कामासूत्र कंपनी, तो वो बहुत सारे पैकेट्स होते थे और अलग अलग फ्लेवर्स वाले पैकेट होते थे. तो आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन टीम के पास बहुत होते थे. वी यूज्ड टू नीड इट एवरी टाइम, एवरी सीन, सेकंड सीन. तो बनारस में तो ये आदत नहीं है, तो हम लोग वो जनरली होता था ना कि अरे यार एक वो स्ट्रॉबेरी का पैकेट देना, एंड कोई सुनता था उसको लगता स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आएगा, आइसक्रीम आएगा, वो स्ट्रॉबेरी कॉन्डम फ्लेवर आता था. तो ये हम लोग सब यूज टू हो गए थे. हम लोग यूज टू, हमारा फन निकल गया था उस चीज से. बट जो लोग देखते थे कि हमने बहुत इंटीरियर सिटी में शूट किया है विद द क्राउड, विद द रियल पीपल, तो जो कॉन्डम के बारे में ओपनली बातें हो रही थी या फ्लेवर्स के बारे में बातें हो रही थी या उसको जो भी सीन्स हो रहे थे, एक टाइम के बाद जो लोग पास भी करते थे ना, गुजरते थे और वो कॉन्डम कॉन्डम सुनते रहते थे, उनको लगता क्या हो गया, हमारी इतनी होली सिटी है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे. बट ऐसा बहुत बहुत चीजें हुई. बट ओवरऑल लेटर मुझे लगता है 8-10 दिन बाद ना वो बनारस में पता चलेगा था, अरे यार वहां पे तो मत जाओ यार, वहां पे तो गंदी पिक्चर शूट हो रही है, शूटिंग हो रहा है कोई गंदी फिल्म का है. ऐसे भी कुछ चीजें होती थी. इट्स ओके, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू डू ना. दैट्स व्हाई वी वेंट टू दैट काइंड ऑफ इंटीरियर स्मॉल टाउन या. वैसे. बट हाँ, काफी फन हुआ. Okay. So again, the session is coming to an end now. Okay. So it was very nice to have a conversation with you, and it was सेम a सेम very है. open conversation as well.
And obviously, the things you have told me, it will help each and every individual, whether it's from Delhi University or it's from somewhere else. It will, at the end, it will help them, and it's for their benefit also. So thank you for sharing everything. Thank you for your time. I